Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel, Manu Issue ACCA classes. So, in this video, I'm going to discuss the Fitzgerald's company questions, and this is from the AFM Copland kit, and this one is also belong from the September December 20 attempt. Okay, so before starting this video, I would like to request all my viewers to subscribe to my channel and share it among your friends so that they could also have the benefit. The more you subscribe, it will more encourage me to go further, right? So it will be something like booster dose. Okay, so in this question, the question have a two requirement. The question is asking to calculate in the percentage term the result of hedging strategy that are being considered for $48 million loan if the central bank base rate increase to 4.1% or falls to 3.3%. Your calculation should demonstrate the rate at which the payment between the counterparties should be made, and the second one is comment on the result of your calculation in the A and discuss the advantage and drawbacks for the Fitzgerald's company of interest rate swaps compared with the traded collars. Okay, so before going deep into the question, I would like to say something. Here in the question asks to calculate in the percentage terms the result of the hedging strategy, right? But sometimes they ask you to calculate the how much the cost it will occur if we are using this particular hedging strategy. So I just want to say, read the question carefully whether they are asking in the percentage term or in the absolute terms. Okay, so open your mind while uh, doing this type of question, whether what the question is asking basically. Other point I would like to add that you should know what is the advantage and disadvantage of the all the instrument included in our syllabus. For example, like in case of interest rate swap, forward rate, if you are using the futures or you are using the option, what will be the advantage and disadvantage of using those particular instrument. Okay, so you must know these things, okay, for dealing with the risk management question. Okay, okay, and the professional marks will be awarded for demonstration in the skills in the analysis, evaluation, commercial acumen. Okay, so basically how you are using the number from the given the scenario, this is so called analysis. And commercial acumen means it's like in reality what's going to be happen if this will be the case. जैसे कि if we are taking the loan, okay, so it will obviously क्या होता है कि लोन बढ़ेगा तो गेयरिंग हमारा बढ़ेगा, गेयरिंग बढ़ेगा तो रिस्क ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी बढ़ेगा. इसके कारण हमारा क्या होगा, शेयर प्राइस, शेयर होल्डर भी डिमांड करेंगे ज़्यादा रिटर्न, सो के विल ऑल्सो इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट हमारा शेयर प्राइस फॉल हो सकता है. सो मतलब आप रियलिटी में कितने अंदर तक जा सकते हो, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियल एक्यूमेन कि आपकी उस चीज़ का कितना आपको नॉलेज है. सो देयर इज 5 separate marks for this demonstration of the analysis, evaluation and commercial acumens. Okay, so be sure आप ये चीज़ भी मेंशन कर रहे हो while writing the answer. Okay, so now let's have a background of the scenario. What's the scenario is, so basically company is a large construction company and its treasury department use a variety of derivatives regularly to manage interest rate and commodity price risks. Okay, transaction to be hazed. Okay, basically today date is 1st August and the company plans to borrow an amount of $48 million on 1st December to finance a major construction project. Oh, so company is going to have a deficit within the few months, or may require a cash. That's why they are planning to borrow to fund those construction project for the period of up to 3 years. See what happens, basically जो हमारा ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म. यहाँ पे अगर 3 years बोला है तो ऑब्वियसली हम लोग को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बट यू शुड बियर दिस थिंग इन माइंड जो हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, आई थिंक एक्सेप्ट स्वैप, बाकी सब शॉर्ट टर्म के लिए है. सो यू कांट यूज इट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड.
ओके, बट क्वेश्चन कहाँ है तो ये तो हमारा माइंड में बियर करना पड़ेगा. सो बट यू दिस थिंग्स यू कैन मेंशन वाइल कंक्लूडिंग योर आंसर, कि आप ऐसे चीज़ लिख सकते हो कि हमारा हेजिंग प्रोडक्ट वगैरह इट्स जो भी है इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. 3 years तो लॉन्ग हो जाएगा, मतलब मोर देन वन ऑब्वियसली लॉन्ग हुआ. सो हो सकता है कि जो भी हम लोग एस्टिमेट करें इट वॉन्ट बी द एक्यूरेट, मतलब हो सकता है ना इस चीज़ प्रैक्टिकल. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू मेंशन. Okay, so its treasury department has decided to hedge the risks associated with this borrowing, as there is some uncertainty about how interest rate will move over the rest of this year. The current central base rate is 3.7%, but prediction in the media suggests that it could rise or fall by 0.4% by 1st December. The company can currently borrow fund at the floating rate of central bank plus 50 basis point. This 50 basis point means 0.5%. Okay. Okay, so Treasury Company Treasury Department is considering the hedging the risk, interest rate risks by using the interest rate swap and the collar. Okay, fine. So these are the information given for the swap and the collar. So okay, so I must say that there are different ways to calculate the swap, interest rate swap. So everybody, I have been faced this problem while I was studying AFM. I used to watch lots of video on the YouTube regarding the interest rate swap. So different people have their own way of doing calculation. So I was very confused how the things are working and how I should get it done. So I was very confused how the things are calculated. So I suggest all of you watching this video, so please follow my step. It will be quite easy to solve any question. So book में भी अगर देखोगे तो they are done in different ways. Each question एक नहीं, in fact risk management का कोई भी question उठा लो, you will find a different way of calculating the things, right? बहुत confusion हुआ था. So when I was studying I was very confused how to calculate the swap, future, option, इतना ज़्यादा कि मैंने बुक को भी, मतलब इतने गुस्से आए थे मुझे, मेरे को तो मैंने पेज ही फाड़ दिए थे. बट एट द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च और मतलब बुक पढ़ने के बाद जो मैंने अपना वे फाइंड किया है, एंड आई थिंक इट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू गाइज एज वेल. सो आई होप इट विल बी यूजफुल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक आउट सम इंफॉर्मेशन. हम लोग एक साइड करके देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड हुआ है. एक सेकेंड, फ्यूचर है, फ्यूचर भी है, ओके नो प्रॉब्लम. सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. Okay, so what is the today date? Today date is 1st August, right? And the companies plan to borrow money, right? So it's 48 million, 48, 1 2 3 4 5 6. So dollar, just I had put in the currency, कौन सी करेंसी में अमाउंट बोरो करे, डॉलर. एंड कब चाहिए? ऑन 1st December. So how after how many month we will require to borrow the money? It's today is 1st August, August, September, October, November. ठीक है, it's 1st December, so don't count the December. So it means August, September, October, November. It's 4 months, right? Okay, so and for how much period, how many period we required? Okay, we required it for 3 years, so called 36 months, right? 36 months. Okay. और क्या दिया हुआ है? Okay, so what is the base rate? Base rate is 3.7%, and media has suggested that it will rise or fall by 0.4%. Fall or rise by 0.4%. This all information I am picking for my reference. So ऐसा कुछ important नहीं कि आपको उसको लिख के दिखाना है. It will be quite easy कि जब calculation करो you can pick up the things very quickly, right? So basically company can borrow at borrowing rate.
So borrowing rate is base rate, B stand for base rate, plus 0.5%. 50 basis point means 0.5%. Okay. Okay. So now anything else that we need to note it down? No, nothing. Okay. So now let's move to the interest rate swap. Swap. Okay. ओके सो बेसिकली स्वैप में क्या होता है ना, आइदर बैंक होगा, थर्ड पार्टी होगा. इफ़ हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें, वी वांट एक्सचेंज द प्रिंसिपल. अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो वहाँ पे प्रिंसिपल भी एक्सचेंज होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि in the interest rate swap we only exchange the interest rate between the parties. Suppose I am currently borrowing at the fixed rate and the opposite party is borrowing at the floating rate, but opposite को लग रहा है कि उसका interest rate घटेगा in the future, so he want to fix कि उसको कम ही पड़े, है ना. I think I said opposite की मैंने उल्टा बोल दिया. I think नहीं ऐसा मैंने अभी करंटली फिक्स रेट पे बोरो किया है एंड सामने वाली पार्टी वेरिएबल पे, बट मेरे को लग रहा है कि फिक्स मेरा इंटरेस्ट रेट घटेगा. सो ऑब्वियसली मैं बोरोइंग वेरिएबल पे मूव करना चाहता हूँ, फ्लोटिंग रेट पे मूव करना चाहता हूँ. सो उस वजह से क्या होगा कि जो डर है इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मैं फ्लोटिंग के अकॉर्डिंग कम पे करूँगा और सामने वाले पार्टी को अपोजिट लग रहा है. सो वी विल एक्सचेंज आवर इंटरेस्ट रेट. मतलब मैं अगर फिक्स पे कर रहा हूँ तो मेरा फिक्स वो पे करेगा, उसका वेरिएबल मैं पे कर दूंगा, इस टाइप का क्या. ओके सो कैलकुलेशन करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली, राइट. ओके सो कंपनी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये यूज़ कर रहा है. ओके फाइंड. ओके Fidgeris company bank has found possible counterparty for the swap with the Fidgeris company, and the counterparty can borrow at annual floating rate, the base rate plus 130 basis point. अब यहाँ पे information क्या put करना है. Now we are beginning our calculation. पहले स्टेप 1 आप क्या करो, information pick करो. What is our means Fidgeris company. फिजरीज कंपनी का बोरोइंग रेट फिक्स्ड में कितना है एंड वेरिएबल में कितना है, एंड सेम फॉर द काउंटर पार्टी की एट व्हाट रेट काउंटर पार्टी विल बोरो एट द बोरो, उसका भी हम लोग को नोट डाउन करना है. सो ये फिजरीज FITZHARIS फिजरीज को and other party is counterparty. Let's put the name. Okay. So here यहाँ पे एक और कॉलम बना लो for the net. Okay. या फिर you can say benefit or loss. So सबसे पहले we have to find out comparative benefit किधर है, ठीक है. I mean comparative advantage. Okay, so first we will write down variable rate, that's so called floating rate, and दूसरा fixed rate. Okay, so variable rate for the Fidgeris क्या है, it's simply B plus, मतलब हम लोग बोरोइंग की बात करें इनफैक्ट तो F कंपनी कैन बोरो एट B plus 0.5%. Same the counterparty can borrow at annual floating rate base plus 130 basis point. Okay, it means base plus 1.3%. ठीक है, डिवाइड बाई 100 कर दो एंड उसका फिक्स रेट इज 4.8%. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फिजरीज कंपनी का फिक्स रेट इज 4.6%, राइट. ओके सो नाउ so step 1 swap में है, you have to find out the comparative benefit or advantage, I think sorry comparative advantage. so basically अगर मान लो मैं यहाँ पे bold करती हूँ या फिर I will highlight it with yellow color. okay इसको भी yellow color. okay just I am assuming कि अगर Fidgeris company variable rate पे borrow करता है and the counterparty will borrow at the fixed rate, so हमारा नेट बेनिफिट लॉस क्या होगा. ओके सो वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग कि व्हाट विल बी द बेनिफिट एंड लॉस इफ एक पार्टी वेरिएबल यूज कर रही है एंड दूसरी पार्टी फिक्स्ड यूज कर रही है. तो सो यहाँ पे देखो, अगर फिजरीज कंपनी वेरिएबल रेट पे बोरो करती है, काउंटर पार्टी के वेरिएबल रेट क्या है B plus 1.3%, इट मीन्स एक्सपेंसिव है. सो कितना बचेगा 1.3% माइनस 0.5%, राइट. सो इतना हमारा सेव हो जाएगा, राइट.
ओके सेम अब यहाँ पे काउंटर पार्टी ने क्या किया, फिक्स्ड पे बोरो किया. सो इफ काउंटर पार्टी विल बोरो एट द फिक्स रेट, वहाँ इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द फिजरिस कंपनी, बिकॉज उसके यहाँ तो फिक्स रेट इज 4.60%. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. लॉस कितने का हो रहा है, सिंपली माइनस दिस टू. ठीक है, तो ये आपका लॉस आ रहा है इतने का. अब इन दोनों को टोटल करो, सो नेट बेनिफिट एंड लॉस कितना आएगा, इट विल बी 0.6%. ठीक है, एक बार और इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी द दिस ऑल थिंग्स एंड पेस्ट इट ओवर एयर. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो, ओके नो इशू. ओके सो नाउ अब इमे काउंटर पार्टी विल बोरो एट द वेरिएबल रेट, और जो फिजरिस कंपनी है ही विल बोरो एट द फिक्स रेट. सो मैंने हाईलाइट कर दिया. सो नाउ इफ काउंटर पार्टी विल बोरो एट द वेरिएबल रेट, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा उसका, राइट, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव ना उसके यहाँ पे. एंड इफ द फिजरिस कंपनी विल बोरो एट द फिक्स रेट, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, एंड बेनिफिट विल बी 0.20, राइट, परसेंटेज. सो ओवरऑल हमारा लॉस आ रहा है कितने का, 0.60 का. सो नाउ यू टेल मी विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल, ऑप्शन 1 कि ऑप्शन 2. बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड, okay. So which one is beneficial, option 1 or option 2? Obviously option 1, because यहाँ पे जो benefit provide है it's higher as comparison to the option 2, है ना. तो option 2 को we will remove. So we find out comparative advantage. Okay, okay, ये क्या हो गया, ओके उससे सारी रिमूव कर देती हूँ सारे को, एक सेकेंड. ओके एंड इसको भी रिमूव कर देती हूँ. ओके सो now we find out our comparative advantage. now again यही फॉर्मेट बनाओ. ओके कॉपी. एक और चीज़, वन थिंग इज मोर मिसिंग, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. द बैंक कुड बैंक हैज quoted, okay, the bank could charge a fee of 5 basis point, मतलब 0.005%, 0.05% to each party, means each party will pay 5 basis point to the bank. It means overall bank will receive 10 basis point to act as an intermediary of the swap. Obviously अभी जो बैंक हम लोग को swap के लिए एक पार्टी अरेंज करके दी है, obviously he is going to be charged a fee, right? Both party would equally share the potential gain from the swap. ये चीज़ को मिस नहीं करना है. You have to read the question very carefully, whether question is saying कि the gain, this gain should be distributed equally between the parties, और एक आपको रेशियो दिया होगा. So be sure, ठीक है, नॉट एज्यूम कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन में. सो इट मीन्स 50-50%, इसका 50% क्या हो गया, माइनस कर दिया मैंने. ओके 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 फाइन, इट विल एंड कॉपी. ओके सो ये हमारा गेन डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके सो नाउ एज वी डिसाइडेड, अब एक्चुअल कॉस्ट कंपनी के पास क्या पड़ रही है. अब फिर दिस कंपनी विल बोरो एट द वेरिएबल रेट, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव मतलब ब्रैकेट साइन रख के बी प्लस 0.5% रखती हूँ, बिकॉज इट्स कॉस्ट फॉर द कंपनी. ठीक है, सिमिलरली काउंटर पार्टी अब वेरी फिक्स्ड रेट पे बोरो करेगी, सो इट विल सिंपली आई विल डू दिस. ओके फाइन. अब ये हमारा सेकेंड स्टेप है. ठीक है, स्टेप 2. ओके सो नाउ सबसे पहले आपको वेरिएबल कैंसिल आउट करना है. वेरिएबल कैंसिल आउट मीन्स फिजरिस कंपनी वेरिएबल रेट पे करा ना, तो ही विल रिसीव द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द काउंटर पार्टी. ठीक है, तो ये पे कर रहा है, तो ये इसको वेरिएबल पे करेगा, इसके में अब कॉस्ट दिखेगा, इसका नील इफेक्ट हो जाएगा. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू कैंसिल द वेरिएबल रेट. सो वेरिएबल नहीं
FIT, I will write in the shortcut FIT jet को रिसीव, ये रिसीव कितना करेगा, इट विल बी B प्लस 0.5%, ठीक है। एंड सेम इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा ये, सो इट विल बी नेगेटिव, मतलब ब्रैकेट मतलब नेगेटिव B प्लस 0.5%। अब फिक्स रेट की बारी, फिक्स रेट में इस वेरी कंफ्यूजन, ये ट्रिकी पार्ट है। सो आप काउंटर पार्टी, आई मीन CC काउंटर, CP काउंटर पार्टी शॉर्टकट रिसीव, तो फिर कंपनी कितना पे करेगा काउंटर पार्टी को। अब आप देख सकते हो द फिक्स रेट इंटरेस्ट इन द फिजरिस कंपनी के यहाँ मतलब उस कंट्री में इट्स 4.60, ठीक है, एंड काउंटर पार्टी के यहाँ 4.80। तो ऑब्वियसली जो फिज कंपनी है हमारा वो 4.80 क्यों पे करेगा, ही विल पे इट्स ऑन फिक्स रेट 4.60 बिकॉज वो चीपर है, ओके। बट द ट्विस्ट इज वो अपना गेन घटा के देगा, उसका जो पोर्शन है गेन का वो घटा के देगा। सो ही विल डिडक्ट हिज पोर्शन ऑफ द गेन फ्रॉम दिस फिक्स कॉस्ट एंड give it to the counterparty. So basically counterparty will receive 4.60 minus इतना 4.30%. Okay, fine. So now bank fee, deduct the bank fee. एक चीज़ याद रखो, बैंक फी ये जो फिक्स पेमेंट के बाद ही डिडक्ट करना है, ठीक है। Okay, so bank fee is 0.05% and same goes for the counterparty. Okay, so now net off करो, net off, नेट रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है। सो बेसिकली दिस विल गेट कैंसल आउट, इन दोनों को प्लस करें, सो इट विल बी 4.25%। अगर यहाँ पे देखा जाए इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट यू टू कैलकुलेट, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक साइड में इसको प्लस इसको, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, ये तो कॉस्ट है ना, वी हैव टू पुट इट इन द नेगेटिव, ओके, and this one is also cost, to put it in the negative, ये भी तो कॉस्ट है इसके लिए एंड इसको भी नेगेटिव में, ओके फाइन। ओके, सो ऐड द फर्स्ट नंबर 1, ये जो नंबर जितने भी सबको ऐड कर लो, ओके। अभी नेगेटिव में आया, सो ये 0.5 है वो भी नेगेटिव में है, सो हम लोग इफ इसमें ऐड कर देंगे 0.5%, देन वी विल गेट 1.05%, तो हमारा बेसिकली आएगा B प्लस 1.05%। ये हमारा कैलकुलेशन, इसको मैनुअली आपको कैलकुलेट करना होगा। And I think we got our answer. So basically you can see जो फिज कंपनी था इसके यहाँ फिक्स इंटरेस्ट फिक्स रेट था 4.60, बट एक्चुअल में स्वैप की वजह से इट ओनली कॉस्ट 4.35%। सिमिलरली फॉर द काउंटर पार्टी, यहाँ पे बेस रेट वाज 1B प्लस 1.3%, बट यूजिंग द स्वैप इंस्ट्रूमेंट इट्स ओनली कॉस्ट B प्लस 1.05%। सो दोनों पार्टी को चीपर हुआ, राइट, एंड बैंक को भी अपना फी डिडक्ट हो गया। So this is what the question is asking in the percentage gain. You have to show कि now if the company is using the swap, उसको cost पड़ रहा है 4.35%. So okay, other क्या था, collar, okay, collar, COLLAR. So basically the concept of collar is ऐसा है कि एक हमारा होता है एक सेकेंड, हाँ, कैप एंड फ्लोर, ओके। सो एक कैप होता है, एक फ्लोर होता है। सो इफ हम लोग वो दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइम पे परचेज करें, सो इट विल कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज इंडिविजुअल बेसिस में हम लोग को प्रीमियम पे करना होगा। बट अगर वो दो इंस्ट्रूमेंट एक साथ परचेज करते हैं, जिसको हम लोग कॉलर कहते हैं, कॉलर में दोनों आता है, कैप एंड फ्लोर, सो इट विल कॉस्ट लेसर व्हाट वी आर पेइंग अर्लियर, अगर इंडिविजुअल खरीद रहे थे तो। सो ये हमारा कॉलर का कंसेप्ट है। बेसिकली इसका वन द मोस्ट क्या बोलते हैं, वन एंड ओनली क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली इसके लिए ही खरीदा जाता है बिकॉज इट विल सेव द कॉस्ट। जो हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस में प्रीमियम पे कर रहे थे, यहाँ पे एक ही प्रीमियम पे करना होगा एंड दैट विल बी लोअर एज कंपैरिजन टू द अदर टू, ठीक है। सो ये कॉलर का ऑप्शन, ओके, कॉलर के लिए आपको इट वर्क सेम लाइक द फ्यूचर एंड द ऑप्शन। सो आपका सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज, यू हैव टू लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड इन आवर केस इज 1 million,
and the contract currency it's dollar. So no issue because we are going to borrow in the dollar and the contract currency size is also in the dollar. So no issue. अगर different होता है वहाँ पे problem आती है. So now let's copy this over here. Borrow कितना करना है? Okay. So now find out the number of contract. Number of contracts, it will be quite simple. This और into करेंगे for how much period we require the loan 36 month and divided by divided always by 3 because हमारा option in future जो होते हैं ना it's like ACC exam जो होता है ना 3 month के gap पे इनका expiry period भी वही होता है 3 month का. So it's like March, June, September, December. So इसीलिए हम लोग divide by 3 करेंगे. Okay, so we require to purchase 576 contract. ठीक है. Okay, so now you have to decide whether we have to call or put. Call or put में भी mainly what we need. हम लोग borrow कर रहे हैं, ठीक है. So borrow कर रहे हैं तो obviously we will sell the bond. हम लोग bond को sell करेंगे, right? So bond को sell करेंगे, so it means we basically need a put, है ना. But call भी साथ साथ में आएगा कॉलर का. तो our mainly intention is a put one. और expiry period ओके दो स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है. नो इशू. हम लोग को दोनों पे कैलकुलेट करके देखना होगा. विच एवर स्ट्राइक प्राइस इज गिविंग द लोअर वी विल चूज दैट वन. ठीक है. ओके सो दिस डन. अब व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द बेसिस. बेसिस विल बी 100 माइनस our base rate is 3.70. Okay, and so I was talking about the expiry date, right? यहाँ पे दिसंबर इन्होंने दिया हुआ है. Okay, so future price of December it's also given 95.85. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग को पहले हम लोग को बेसिस फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड बेसिस कैसे फाइंड होता है? ऑलवेज इज्यूम हमारा इंटरेस्ट के केस में स्पॉट रेट इज 100 एंड माइनस कर दो वहाँ से हमारा जो भी बोरोइंग या डिपॉजिट रेट है जो भी. बट यहाँ पे हमारा क्या है? बोरोइंग है. तो बोरोइंग का बेस रेट, तो बेस रेट इज 3.70. ठीक है. अब नाउ वी विल लुक एट द फ्यूचर प्राइस ऑफ दिसंबर. बेसिकली बिकॉज हमारा ट्रांजेक्शन डेट कब का है? इज 1 दिसंबर. तो वी विल ऑब्वियसली चूज द दिसंबर एक्सपायरी वन फ्यूचर, राइट? सो दैट्स वाई हमारा दिसंबर होगा. एंड इसका फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है एंड इट्स 95.85. सो नाउ unexpired basis we will स्पॉट रेट है दिया हुआ है. स्पॉट रेट करंट एंड फ्यूचर. ओके एक सेकेंड. वन थिंग आई डिड मिस्टेक. एक सेकेंड. हाँ नहीं एक सेकेंड. हाँ पहले बेसिस तो निकाला ही नहीं. ये हमारा करंट प्राइस है. ओके करंट प्राइस एंड बेसिस विल बी डिफरेंस ऑफ दिस टू इज 0.45. अब निकालेंगे अनएक्सपायर्ड बेसिस. ओके so unexpired basis basically our transaction date is 1st December and expiry date is 31st December. So it's 1 month gap, right? So divide multiply it by 1 and divide करने की बात आती है तो we will count from today to expiry date. So today date is August, September, October, November. Now we will count December as well. हम लोग को up to expiry date we have to calculate the period. So it's 5 month. So we will divide it by 5. Once again I am telling basically हमारा current price will be the spot rate minus the future price and current price in case of the interest rate is 100. So 100 sorry current बोले spot price sorry एक सेकेंड. करंट प्राइस बेसिकली हमारा होता है स्पॉट रेट माइनस आपका बेस रेट. ठीक है.
सो हमारा स्पॉट रेट इन केस ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑलवेज 100 होता है, एंड वी विल माइनस बेस रेट. द बेस रेट गिवन इज 3.7. नॉट यूज द परसेंटेज, सिंपली 3.7 रखो. एंड वी गॉट आवर करेंट प्राइस एंड उसके बाद फ्यूचर प्राइस भी दिया है, एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू इज आवर बेसिस. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अनएक्सपायर्ड बेसिस. एंड अनएक्सपायर्ड बेसिस मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन डेट एंड आपका एक्सपायरी में कितने का गैप है. सो आवर ट्रांजेक्शन डेट इज 1st December एंड आवर एक्सपायरी डेट इज 31st December. सो गैप इज ऑफ 1 month, so we multiply it by 1. And for dividing we have to calculate from today date to expiry date. कितने गैप है दोनों में. हमारा आज का 1st August है एंड एक्सपायरी डेट इज 31st December. एक चीज़ याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के केस में या कॉन्ट्रैक्ट जो भी एक्सपायर होता है, इट ऑलवेज एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है. सो फ्रॉम अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट्स टोटल 5 months. सो आई डिवाइडेड इट बाई 5 months. So now we will calculate the future lock rate. Future lock rate will calculated as 100 minus एक सेकेंड ये भी interest rate increases by कितने से fall and decrease की बात हो रही थी ना, इस 0.4%. अगर इंटरेस्ट रेट 0.4% से बढ़ जाती है तो फ्यूचर लॉक रेट विल बी 100 माइनस बेस रेट कितना था 3.7, एंड नाउ वी विल, अब बढ़ गया तो 0.4 को भी माइनस करेंगे. ठीक है. ये हमारा हो गया प्राइस. इसमें से अभी अनएक्सपायर्ड बेसिस भी माइनस करना होगा. अनएक्सपायर्ड बेसिस ये 0.9, सो इट्स 95.81. ठीक है. अगर वही इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता तो, ओहो एक सेकेंड, okay, so we will put here decreases by 0.4%. तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं इसको, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है ना. सो अनएक्सपायर्ड बेसिस ये वाला. ओके ओके. सो वी गॉट आवर फ्यूचर लॉक रेट. सो नाउ वी विल कंपेयर करेंगे स्ट्राइक प्राइस से. स्ट्राइक प्राइस एक है 96 पॉइंट, पहले 96.25 की बात करते हैं. 96.25. ये तो कॉलर है, एक सेकेंड. हाँ 96.25. फिर इसका भी 2 केसेस बनेंगे. इसको फिलहाल अभी साइड करते हैं, यहाँ रख के पहले एक केसेस करते हैं. ओके ये हमारे फ्यूचर लॉक रेट वी गॉट टू नो. सो बेसिकली वी हैव, हम लोग को पहले पुट ऑप्शन देखना है, राइट. सो वी विल राइट डाउन पुट पहले, उसके बाद कॉल. ठीक है. पुट का एक्सरसाइज प्राइस इज 95.75 एंड कॉल का एक्सरसाइज प्राइस इज 96.25. आई होप यहाँ तक क्लियर हो. ठीक है. फ्यूचर लॉक रेट निकालेंगे, पहले इंक्रीज का केस देखते हैं, उसके बाद डिक्रीज, अदरवाइज यू विल गेट मेस्ड अप. ठीक है. सो स्ट्राइक प्राइस इज गिवन. हम लोग पहले पुट हम लोग को चाहिए, सो मैंने उसलिए पुट को पहले रखा एंड कॉल हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, राइट. सो नाउ फ्यूचर लॉक रेट. फ्यूचर लॉक रेट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं. इट विल बी सेम दोनों केस में. सो नाउ यू विल आस्क योरसेल्फ वेदर यू विल एक्सरसाइज और व्हाट. So now you decided to buy the future option, नहीं future होगा, sorry. Now you decided to buy put future at 95.75, but उस दिन मान लो रेट हो गया 95.81. Will you exercise or not? Ask yourself. Obviously हम लोग ने एग्री किया, ऐसे समझो, वी एग्री टू सेल. बाई पुट से भी मतलब बाई तो हमें माइंड में क्लिक करता होगा आई थिंक. सो पुट मतलब सेल. सो वी डिसाइडेड टू सेल फ्यूचर एट 95.75, बट उस दिन रेट हो गया 95.81. और ये याद करना, कॉलर इज लाइक द ऑप्शन यू कैन लिफ्ट. अगर आपका मतलब फेवरेबल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यू कैन लिफ्ट द ऑप्शन. ऐसा है क्या. तो ऑब्वियसली हम लोग उस दिन मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा एज वॉट वी हैव डिसाइडेड. जो हम लोग फिक्स किया हुआ है उसके कंपैरिजन में मार्केट में ज़्यादा रेट चल रहा है. सो ऑब्वियसली वी विल सेल इट एट द मार्केट रेट. सो वी वांट एक्सरसाइज, राइट. अगेन यहाँ पे कॉल की बात देखो, आपने तय किया इतने में बाई करोगे. ठीक है.
और सामने वाला बंदा मार्केट में उसको 95.81 मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग बाई नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरे पार्टी ने कॉल ऑप्शन लिया है, हम लोग का ऑब्लिगेशन बनता है, हम लोग को सेल ही करना पड़ेगा, मतलब बाई ही करना पड़ेगा अगर सामने वाली पार्टी एक्सरसाइज कर रही है, राइट। तो सो नाउ you decided you will buy at 96.25 और बट मार्केट में रेट चले 95.81, सो अपोजिट पार्टी विल ऑब्वियसली बाय एट द मार्केट रेट बिकॉज उसको चीपर पड़ रहा है, तो ही विल ऑल्सो नॉट एक्सरसाइज, राइट। सो नो, सो नाउ आपका प्रीमियम, प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है यहाँ पे आपका पहले पुट ऑप्शन का प्रीमियम इट्स 0.211, ये आप रिसीव करोगे, एंड कॉल ऑप्शन का यू हैव टू पे, सो मीन्स माइनस 0.198, सो नेट एड दिस टू, सो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका इट्स इन द परसेंटेज, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा दिस परसेंटेज इनटू नंबर ऑफ contract size into 3/12, और व्हाट यू कैन डू इज आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, अब हमारा प्रीमियम कॉस्ट इतना पड़ रहा है एंड इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, बढ़ गया ना, सो इंटरेस्ट रेट इज अर्लियर इट वाज 3.7% बेस रेट, एक मिनट, हाँ 3.7 बेस रेट, अब इंक्रीज होकर 0.4 हो गया, बट वी कैन बोरो एट बेस रेट प्लस 0.5%, रिमेंबर। तो हम लोग यहाँ पे 0.5 को भी ऐड करेंगे एंड आफ्टर विल पुट परसेंटेज, सो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, add this two because question has asked to calculate in the percentage term. जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री प्लस 4.6 करने पे तो इट्स 4.63 आ रहा है, सो परसेंटेज, सो बेसिकली मैंने इस नंबर को प्लस किया, आई डोंट नो ऐसे प्लस करने पे क्यों ऐसे आ रहा है, ओ इस एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैंने ये परसेंटेज बगल में लिखा हुआ है ना, इसीलिए ओके, नो इशू, या फिर इसी को ऐसे कर सकते हैं ना 4.60, अब होगा, it will be now walk, yes को plus ये, okay 4.613 percentage, right, okay. So now we will do the cases for the interest rate decrease, if it will decrease by 0.4%, तब हमारा केस क्या बनेगा, we will copy it from the verb, जैसे हम लोग ने ऊपर किया वैसे सारी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ऐसे copy and we will paste it over here. So we had already calculated the future lock rate, right, so future lock rate, okay. So now you decided to sell at 95.75 और मार्केट में चला 96.61, अगेन you will exercise or not, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा में बेच सकते हैं। सिमिलरली फॉर द केस कॉल के लिए मतलब अदर पार्टी ने डिसाइड किया दैट ही और शी विल बाय एट 96.25, बट मार्केट में चल रहा है 96.61, वो लोग ऑब्वियसली उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज वो चीपर है, सो दे विल एक्सरसाइज, यस, ठीक है। तो नाउ प्रीमियम विल बी द सेम, नो इशू, ठीक है प्रीमियम का। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या कैलकुलेट करना होगा, ये जो गेन है ना यहाँ पे गेन इज फॉर द अदर पार्टी नॉट फॉर द ऑस, ठीक है। हम लोग को कॉल ऑप्शन चाहिए नहीं था ना, वो दूसरे पार्टी ने खरीदा हुआ है, वो एक्सरसाइज करे तो ऑब्वियसली इट्स आवर ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ये हमारा लॉस हो रहा है, नॉट द गेन। अब लॉस भी कितने से, दिस माइनस दिस 0.36, ठीक है।
ओके, सो टोटल लॉस की देखा जाए तो टोटल, ये तो परसेंटेज में निकल गया। सो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करो, जस्ट ऐड वन मोर रो एंड यहाँ पे ऐड कर दो इसका लॉस। सो लॉस ऑन ऑप्शंस, इट विल सिंपली, आप इसको यहाँ पे रख के परसेंटेज डाल दो। So adding this all three, we will get यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ तो it will be deducted minus, okay fine. So now we got our कि अगर कॉलर यूज करें तो क्या कॉस्ट आएगा, एंड इफ वी आर यूजिंग द स्वैप व्हाट विल बी द कॉस्ट, वी got our calculation in the percentage term, right, which was the requirement of the question. So well done, you scored the 13 marks. नाउ अब कमेंट करना है एज पर द ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया ए में, और उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वी हैव टू टॉक अबाउट द वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट वी हैव बीन यूज्ड इन द ए। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्वैप का एडवांटेज की बात किया जाए, सो स्वैप जो होता है ना, इट्स लाइक ओवर द काउंटर अरेंजमेंट, ठीक है, ये आपका ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। इट मीन्स अगर एडवांटेज की बात की जाए तो व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे हमारा अंडर या ओवर हेज की प्रॉब्लम आ सकती है। एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट किए, अगर यहाँ पे 576.66 होता ना, वो 0.66 को नहीं हेज करता, इट विल ओनली हेज द 576, ठीक है, उसको आपको राउंड अप करना होता है या फिर राउंड डाउन करना होता, जो भी करो, बट इट विल नॉट हेज द एग्जैक्ट अमाउंट विच वी आर ट्राइंग टू हेज। सो ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन का डीमेरिट, ये हमारा एडवांटेज हो जाता है स्वैप के केस में, आई मीन ओवर द काउंटर में, बिकॉज वी कैन हेज द एनी अमाउंट सो विदाउट अकरिंग एनी अंडर या ओवर हेज। सो ये हमारा एक एडवांटेज इसका हो सकता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, मैंने उस टाइम भी बोला, स्वैप को छोड़ के बाकी सारे मतलब आपका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, एंड स्वैप आपका लॉन्ग टर्म पीरियड कवर करता है। सो इट कैन हेज लॉन्ग टर्म पीरियड, जो हमारा लोन या डिपॉजिट का जो भी पीरियड होगा इट विल कवर द होल द पीरियड, ठीक है। अगर वही कॉलर वगैरह शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है तो वहाँ पे वो पूरा फुल पीरियड हो सके ना कवर करे, राइट। और थर्ड एडवांटेज आप ये लिख सकते हो, जो स्वैप के केस में आप देखो, इट विल फिक्स योर इंटरेस्ट रेट टू 4.35%, नो मैटर वेदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज और इंक्रीज, आपको एक फिक्स पे करना पड़ेगा। सो इट विल हेल्प यू इन द प्लानिंग और बजटिंग, right? So these are all are the advantage of the swap. Now talking about the disadvantage, as the swap is the over the counter product, so there is always the risk of counterparty default, okay, because if the counterparty is bearing a huge amount of loss, obviously he will default unless and until such transaction are with the bank, ठीक है, अगर बैंक से है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ द काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। ये हमारा क्या होता है, स्वैप का डिमेरिट होता है। दूसरा डिमेरिट क्या होता है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट फेवरेबल में मूव किया, यू आर नॉट सपोज टू टेक द एडवांटेज, वाई, बिकॉज इट विल फिक्स योर इंटरेस्ट रेट टू 4.35%। अगर वही आप कॉलर लेते हो तो यू कैन ऑब्वियसली लिप्स द ऑप्शन, ठीक है, आप लिप्स कर दोगे, नो मैटर, नो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द स्वैप। अगर आप कॉलर की बात करो तो ऑब्वियसली अभी ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा फ्यूचर का, इट विल बी लाइक रीजनेबल होगा, मतलब कोई आपका मिस प्राइसिंग नहीं होगा। ओवर द काउंटर में देयर इज हाई चांस ऑफ मिस प्राइसिंग, सो मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होता है एंड काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट नहीं होता है। अगर सेम टाइम वी टॉक अबाउट द डीमेरिट, तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज हाई रिस्क की आपका मतलब रिस्क भी नहीं कह सकते, मतलब आपका अमाउंट अंडर या ओवर हेज हो सकता है, एंड इट माइट नॉट कवर द होल लोन और डिपॉजिट पीरियड। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टॉक अबाउट टेकिंग द कैलकुलेशन, मतलब जो हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो परसेंटेज आया है उसको आप रेफरेंस लेके यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द फॉर द पार्ट बी। Okay, so I hope this video was very fruitful to you guys, and for more video like this, please stay tuned with my channel and don't forget to hit the bell icon for more updates, right? So I hope you enjoy, and if in case you have you are having any doubt and if you didn't get any calculation, so you are please feel to text me over the Instagram, Telegram, wherever you feel very easy. So I will try my best to clear your doubt. Okay, so thank you so much for watching my video.